Hello, dear children. Good morning. Welcome to English Kingdom. Today's lesson will be an elementary school classroom in Islam. This is a short poem which is composed by Stephen Spender. And if you look at the title of the poem itself, you will be finding elementary school classroom. Elementary refers to the primary school classroom, and in a slum refers to those particular habitations which are generally at the roadsides near the bus stands and railway stations, which their houses do not have proper planning. Wherever they find the way, they make their houses, and generally these are the discarded areas. So this is the poem which we are going to read today, and we shall be making a comparison between our own classroom and their classroom. That how privileged are we to have a very good classroom, which is having a full light and which is having a proper space and proper hygienic system. But what about those slum classrooms where everything is very filthy and students are somehow managing the things? So let's go to the poem and begin the explanation. So here is your poem, An Elementary School Classroom in Islam. The introduction of the poet is given at the beginning. Stephen Spender, born in 1909 and died in the year of 1995. He was an English poet and an essayist. He left University College Oxford without taking a degree. यानी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड गए थे वो, लेकिन डिग्री नहीं ली, एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930, और 1930 में बर्लिन चले गए. स्पेंडर टुक ए कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स. स्पेंडर का पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट. पैसिफिस्ट इज द पर्सन हु वर्क्स फॉर द पीस ऑफ द पीपल, पीस ऑफ द सोसाइटी. तो उन्होंने अपने आप को एक सोशलिस्ट और पैसिफिस्ट डिक्लेयर कर दिया. बुक्स बाय स्पेंडर, कौन कौन सी स्पेंडर की बुक्स हैं? द फर्स्ट वन इज पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, and the second one is the age of being, the third one is the creative element, and the fourth one is the struggle of the modern. And an autobiography is also there. Autobiography is that element where someone writes about himself or herself, जिसमें खुद व्यक्ति अपने बारे में लिखता है, दूसरों के बारे में लिखता है तो वो बायोग्राफी हो जाती है, और खुद के बारे में लिखता है तो वो ऑटोबायोग्राफी हो जाती है. तो ऑटोबायोग्राफी का उनका नाम था वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड. This was the name of their autobiography. In this poem, An Elementary School Classroom in Islam, he has concentrated on themes of social injustice and class inequalities. तो इस poem के जो मुख्य दो themes हैं, the first one is social injustice and the second one is class inequalities. हम क्या करते हैं, class inequalities को पहले समझ लेते हैं और social injustice को बाद में समझेंगे. Class inequalities क्या होती हैं? देखिए, समाज में इस जो वर्ग है इसमें सभी लोग इक्वल, हालांकि भगवान ने इक्वल बनाए हैं, ईश्वर ने उन्हें ऊपर से, द गॉड हैज सेंट देम इक्वल, बट पीपल हैव discriminated amongst themselves in the name of creed, caste, religion and the money. In that way they have created inequalities. Someone belongs to high class and someone belongs to lower class, then it leads to social injustice. जो हाई क्लास के लोग होते हैं वो जो छोटी क्लास के लोग होते हैं उनसे इनजस्टिस करते हैं, उनको समाज में प्रॉपर चांसेस नहीं मिलते, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, इसलिए उनके साथ में भी इनजस्टिस क्रिएट होता है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट द राइट टू द एजुकेशन इटसेल्फ, जो राइट टू एजुकेशन है, तो एजुकेशन का जो अवसर है, द अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन शुड बी विद एवरीबडी. It should not be limited to the high class people only, that they have every right to go to very good schools, very expensive schools. It should be expanded towards the lower class also, that education is the right of everybody. तो लेकिन ऐसा होता नहीं है, सोशल इनजस्टिस इसीलिए क्रिएट होता है. तो लुक एट द फर्स्ट स्टेंजा की तरफ चलते हैं. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस फीट्स. फार फार मीन्स वेरी फार. फ्रॉम गस्टी वेव्स, गस्टी वेव्स आर हियर द सिंबल ऑफ मॉडर्निटी एंड डेवलपमेंट. ये जो गस्टी वेव्स हैं या मॉडर्निटी एंड डेवलपमेंट का सिंबल हैं. दीज चिल्ड्रंस फेसेस means the poet wants to say that these children are very much far away from the modernity and development. Their faces like rootless weeds. Their faces have been compared with rootless weeds. Now what weeds are? Weeds क्या होती हैं? Weeds are those unnecessary plants, unwanted plants which are generally thrown away by a farmer. जो किसी किसान द्वारा खेत से बाहर फेंक दिए जाते हैं.
तो उसी प्रकार से चूंकि ये सोसाइटी के काम के नहीं है, इसलिए सोसाइटी ने इनको मार्जिनलाइज कर दिया है, सोसाइटी ने इनको एक तरफ फेंक दिया है। सोसाइटी ट्रीट्स देम लाइक वीड्स, सोसाइटी उनकी तरह उनके साथ में जो वीड्स जैसा ही व्यवहार करती है। तो द हेयर टर्न अराउंड देयर पैलर, पैलर मीन्स देयर फोरहेड, उनके जो फोरहेड के आसपास में जो बाल हैं, बाल यानी उनके फोरहेड पे बिखरे हुए हैं, दे आर स्कैटर्ड, दे आर नॉट प्रॉपर्ली कोम्ड, उन्हें प्रॉपर्ली कोम्ड नहीं किया गया है। तो इफ यू लुक एट द फर्स्ट टू लाइंस, actually two poetic devices have been used there. The first one is alliteration and the second one is, in the second line it is simile. If you look at the first line, far far from, this F sound is being repeated, this creates alliteration, these are consonant sounds. And in the second line, like rootless weeds, means children's faces have been compared with rootless weeds, इसलिए ये यहाँ पर simile बन जाती है। The tall girl, one tall girl we can see in the picture, means in the classroom. She is weighed down head, her head is weighed down, it is because of any disease. The paper seeming boy, one paper seeming boy means one boy as thin as a paper also can be seen with rat's eyes. His eyes are looking like a rat. Rat's eyes are here the symbol of hunger. So as hunger can be seen in a rat's eyes, in the same way that boy also has the same eyes, means he is also very hungry. The stunted, unlucky ear of twisted bones, the stunted means undeveloped, वो पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ, बहुत अनलकी है, उसे अपने फादर से क्या मिले हैं, ट्विस्टेड बोन्स की बीमारी मिली। ट्विस्टेड बोन्स इज ए काइंड ऑफ डिजीज, जिसे आगे नाल्ड डिजीज भी कहा गया है, रिसाइटिंग ए फादर्स नाल्ड डिजीज। Gnarled disease is a kind of disease where bones are twisted, जहाँ bones जो होती हैं वो twist हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं और properly function नहीं करती है। तो उसे अपने father से ये चीज मिली है। जनरली होता क्या है कि लोगों को अपने पिता से अच्छी विरासत में अच्छे अच्छे बंगले मिलते हैं, अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट है इसके लिए, ये अनडेवलप्ड बच्चा है, अनलकी बच्चा है, अनफॉर्चुनेट है कि उसे अपने पिता से बीमारी जो है इनहेरिटेंस में मिली है, यानी विरासत में मिली है। his lesson from his desk, he is taking his lesson from his desk at back of the dim class. The class is dim because there is no proper light. Class dim है क्योंकि क्लास में proper light नहीं है। One unnoted sweet and young boy also can be seen. Unnoted means unnoticed, जिसकी तरफ किसी ने देखा नहीं है। He is very sweet, he is very young. His eyes live in a dream. His eyes have a dream, उसकी आंखों में एक सपना दिखाई देता है। किस तरह का सपना? Of squirrel's game. Squirrel's game is he wants to have liberty like a squirrel. वो एक स्क्विरल की तरह की लिबर्टी चाहता है। A squirrel can go anywhere. एक स्क्विरल कहीं भी जा सकती है। In the same way he wants to have the liberty of squirrel. In tree room other than this, जिसका घोंसला एक पेड़ के अंदर है, other than this यानी यहाँ से बिल्कुल अलग। He does not, and the boy does not like this room, और वो लड़का भी इस रूम को पसंद नहीं करता है। He is interested in going to the tree room, वो उस ट्री रूम में जाना चाहता है जहां ये स्क्विरल रहती है। क्यों उसे स्क्विरल का ट्री रूम पसंद है? क्योंकि स्क्विरल को लिबर्टी हासिल है, कहीं भी आने की, कहीं भी जाने की। Now we are coming to the second stanza. I hope that you have completely understood the first stanza. Now coming to the second stanza. On sour cream walls. This classroom is having sour cream walls. जो ये क्लासरूम है, इसकी जो वॉल्स हैं, इनका कलर साउर है। साउर मीन्स फेड हो चुका है, पूरी तरह से फीका पड़ चुका है। डोनेशंस ऑन वॉल्स, पिक्चर्स आर हैंगिंग, दोज पिक्चर्स हैव बीन डोनेटेड बाय द पीपल। व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर्स आर देयर? Shakespeare's head. One picture is of where you can see Shakespeare's picture, only face you can see. Cloudless at dawn. Dawn means morning time. Cloudless. One natural scenery is also there where you can see the morning scene where the sky is cloudless. Civilized dome riding all cities. Civilized dome. Civilized means very well developed. Dome means tower. Riding all cities means covering all cities. So this is the different picture. One more picture is there. Ballad, flowery, Tyrolese valley. One picture is of Tyrolese valley. Tyrolese valley is a
very famous valley which is generally having many different kinds of flowers, and it's a very good tourist place. So this is another picture which is hanging on the wall. Open-handed map awarding the world its world. You can see one map also is there which is hanging on the wall, and it is open-handed map. Why is open-handed? Because the boundaries of any country or any state in this particular map can be decided by anyone who are in power and who are having the money. ये ओपन हैंडेड मैप इसलिए है ओपन हैंडेड मैप क्योंकि इस मैप में जितनी भी कंट्रीज की बाउंड्रीज दिखाई गई हैं उन बाउंड्रीज को कोई भी तय कर सकता है, जिसके पास में पैसा है, जिसके पास में पैसा है, जिसके पास में ताकत है, और इन बच्चों के पास में ना तो पैसा है और ना ही ताकत है. So this map is there which is demarking the world with the boundaries, and yet for these children, लेकिन इन बच्चों के लिए these windows, not this map their world, इन बच्चों के लिए ये उनका जो वर्ल्ड है वो ये मैप नहीं है, बल्कि उन बच्चों के लिए उनका वर्ल्ड इज लिमिटेड टू देयर विंडोज ओनली. देयर वर्ल्ड इज लिमिटेड टू देयर विंडोज. उनका जो मैप है वो केवल, उनका जो वर्ल्ड है वो केवल विंडोज तक ही लिमिटेड है. उन्हें इस मैप से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि उनकी दुनिया तो उस क्लासरूम के अंदर इन विंडोज तक ही सीमित है. Where all their future is painted with a fog. और इनका पूरा का पूरा फ्यूचर है जो फॉग से पेंटेड है. फॉग इज द सिंबल ऑफ अनसर्टेनिटी, तो इनका फ्यूचर का भी कोई पता नहीं है. दैट्स व्हाई द पोएट हैज रिटन फ्यूचर इज पेंटेड विद ए फॉग. कमिंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टैंजा. अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई, फार फार फ्रॉम रिवर्स, कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स. इनके क्लासरूम के बाहर एक छोटी सी गली है, सील्ड इन, जिसमें केवल ऊपर स्काई दिखाई देता है, लेड स्काई. दैट स्काई इज लेड बिकॉज ऑफ पोल्यूशन. पोल्यूशन के कारण भी हो सकता है, या फिर सनलाइट जो है, शाम की सनलाइट के कारण भी ऐसा हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है पोल्यूशन के कारण ये स्काई लेड है. फार फार फ्रॉम रिवर्स, उनकी दुनिया नदियों से, कैप्स वाटर, दूसरी ये कैप्स एक वाटर बॉडी का नाम है जो तीन तरफ से पानी से सराउंडेड होता है, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और इनके लिए वर्ड्स तो बिल्कुल दूर स्टार्स की तरह प्रतीत होते हैं, यानी नॉलेज यानी बुक्स इनके लिए बहुत दूर है. सो व्हाट काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट लाइफ दे आर लिविंग. मींस स्टार्स ऑफ वर्ड्स का एक और मीनिंग यहाँ पर हो सकता है कि दे डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट स्टार्स. Stars are limited to words only. They do not get any opportunity to go to any laboratory or anything from where they can have the view of stars. Like that also it may be the meaning of that. Now coming to the third stanza. Surely Shakespeare is wicked. Means Shakespeare is wicked means Shakespeare is of no use to them. Shakespeare उनके किसी काम का नहीं. The map a bad example. अब शेक्सपियर क्यों काम का नहीं है? बिकॉज शेक्सपियर इज द सिंबल ऑफ हाई एजुकेशन एंड लिटरेचर, एंड देयर कंडीशन इज दैट दे आर स्ट्रगलिंग इवन फॉर बेसिक एजुकेशन. दैट्स व्हाई व्हाट इज द यूज ऑफ शेक्सपियर फॉर देम? द मैप अ बैड एग्जांपल. मैप इज बैड एग्जांपल फॉर देम बिकॉज द मैप इज सिंबलाइजिंग द वर्ल्ड, एंड देयर वर्ल्ड इज लिमिटेड टू देयर विंडोज ओनली. सो दैट्स व्हाई देयर मैप इज आल्सो नॉट, मैप इज आल्सो ऑफ नॉट यूज, नो यूज टू देम. मैप का भी कोई मतलब नहीं है. शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील. कुछ जो पिक्चर्स हैं जिनमें शिप्स हैं, सन हैं, और रोमांटिक पिक्चर्स जो हैं लव वाली, दे अट्रैक्ट देम, वो उनको अट्रैक्ट करती. दे आल्सो वांट टू लिव दैट लाइफ, वो भी उस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं. बट दैट लाइफ स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स. लेकिन वो लाइफ उनके क्रैम्प्ड होल्स मींस उनके घरों के लिए रेफर किया गया है, उनके झुग्गी झोपड़ियों के लिए रेफर किया गया है, जो चुपके से उनके घर में घुसती है और फॉग से शुरू होती है और एंडलेस नाइट तक खत्म हो जाती है. मींस देयर इज नो चांस दैट दे विल गेट दिस काइंड ऑफ लाइफ एवर. कोई ऐसा चांस नहीं है कि उन्हें इस प्रकार की जिंदगी कभी मिलेगी, क्योंकि उनकी जिंदगी फॉग से शुरू होती है और खत्म कहाँ होती है? एंडलेस नाइट, ऐसी रात. और दोनों ही अनसर्टेनिटी और
जिसे कहते हैं अनसर्टेनिटी और डिसअपॉइंटमेंट का सिंबल है। ऑन देयर स्लैग हीप, क्योंकि उनके घर एक कचरों के ढेर पर बने हुए हैं। दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, इन बच्चों के जो शरीर हैं उनमें से उनकी हड्डियां भी साफ साफ दिखाई देती हैं। दे आर वेयरिंग स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, उन्होंने चश्मे पहन रखे हैं स्टील के बने हुए, विद मैंडेड ग्लास, जिनके लेंसेस भी उसमें मैंडेड ग्लासेस हैं, यानी उनके ग्लास को रिपेयर किया गया। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, जैसे किसी ने पत्थर मार के जब किसी कांच की तरफ पत्थर फेंकते हैं तो उस कांच नहीं टूटने के कारण उस पर जो क्रैक के निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार से उनके मैंडेड ग्लासेस पे, उनके लेंसेस पे इस तरह के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, उनका पूरा टाइम और उनका पूरा स्पेस दैट इज लिमिटेड टू दिस स्लम, एंड दैट स्लम इज आल्सो फॉगी। स्लम इज फॉगी मींस स्लम डज नॉट हैव एनी करियर और एनी अपॉर्चुनिटी। फॉगी फॉग से बना है। सो ब्लॉट देयर मैप्स, मैप्स अगेन हियर सिंबलाइजेस वर्ल्ड। It has stopped their world. It has blocked their world. Slums as big as doom. ये जो slums हैं उनके लिए ये बड़े से गुंबद की तरह बिहेव करती हैं और उनके लिए बड़ा सबसे बड़ा हर्डल भी यही है। Now in the last stanza, the poet is urging something. The poet is requesting something. He is making a request to the government authorities, governor, inspector, and visitors. What kind of request is he making? क्या request all the governors, inspectors and visitors कि ऐसा ना हो कि this map becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs, कि ये window इनकी हमेशा के लिए इनका वर्ल्ड सीमित होकर रह जाए और फिर ये विंडोज इनके जीवन के ऊपर कैटाकॉम्स की तरह बंद होकर रह जाए। कैटाकॉम्स कहते हैं अंडरग्राउंड ग्रेवयार्ड, जो अंडरग्राउंड कब्रिस्तान होता है उसे कैटाकॉम्स कहा जाता है। तो व्हाट डज द पोएट से कि आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द गवर्नर्स, इंस्पेक्टर्स, विजिटर्स एंड ऑल द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कि आप आगे आइए, ऐसा ना हो कि ये विंडो तक ही इनका वर्ल्ड सीमित होकर रह जाए और ये विंडो कहीं इनके जीवन में कैटाकॉम्स की तरह ना बंद कर रह जाए, उनके जीवन के ऊपर कब्रिस्तान की तरह, अंडरग्राउंड कब्रिस्तान की तरह बंद होकर ना रह जाए। यहाँ सिमिली का यूज किया गया है। ब्रेक, ओ ब्रेक ओपन, तोड़ दो, इन खिड़कियों को तोड़ दो। टिल दे ब्रेक द टाउन, जब तक कि वो टाउन के अंदर ना चले जाएं बच्चे। दे रेफर्स टू चिल्ड्रन हियर एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और इन बच्चों को ये हरे हरे खेत दिखाओ। मेक देयर वर्ल्ड रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, गोल्ड सैंड्स मींस रेफर्स टू द सी कोस्ट, समुद्र के तट की तरफ। समुद्र के तट की ही सैंड जो होती है वो गोल्ड होती है। वहां इन्हें खुले आसमान के नीचे, एज्योर मींस ब्लू, ब्लू स्काई के नीचे इन्हें दौड़ने दो। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, लेट देम रीड व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स, वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स। अब यहाँ ग्रीन लीव्स मे बी द सिंबल ऑफ द बुक्स ऑफ साइंस एंड व्हाइट लीव्स मे बी द सिंबल ऑफ द बुक्स ऑफ आर्ट्स एंड हिस्ट्री एंड ऑल ऑफ दीज। कि उन्हें पढ़ने दो इन बुक्स को, उन्हें नॉलेज गेन करने दो। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, ये मेटाफर यूज किया गया है। लैंग्वेज को यहाँ सन बताया गया है, लैंग्वेज का कंपैरिजन। लैंग्वेज सन होने का मतलब इफ योर लैंग्वेज इज पावरफुल, एंड व्हेन योर लैंग्वेज इज पावरफुल, योर लैंग्वेज इज पावरफुल व्हेन इट हैज नॉलेज। सो व्हेन योर लैंग्वेज इज पावरफुल, हिस्ट्री विल कीप you in books, history will keep you remember, history will remember you, otherwise people will forget you। जब अगर आपकी लैंग्वेज में पावर होगी, आपकी लैंग्वेज में कुछ नॉलेज होगी, लैंग्वेज पावरफुल होगी, तो लोग आपको याद रखेंगे, otherwise they will forget you। So this was the explanation of this particular poem। अगर आपको ये पोएम में कोई दिक्कत है किसी लाइन में, तो you can again make a comment in the comment box, or there I will be giving the answer for your questions। Thank you।